Hello, dear students. I hope you guys are studying well. So this is a question hour and we will solve only questions here. So solve in your rough copy, pause a question and solve within a 2 minutes. You have only 2 minutes to solve any question. Then check the solutions. Finally, check how much you scored, how much you got it, and then write everything in your notes. All of you have to WhatsApp me your marks. चाहे जितने भी मार्क्स आए हों, जितने भी क्वेश्चन सही हो गलत हुए हों, you have to WhatsApp me. I just wanted to see how sincere you guys are during these corona days, during this lockdown days. Please be sincere क्योंकि आपका IIT तो जैन में ही होगा and you are here for IIT. तो फिर चलिए शुरू करते हैं. Question number 1 I will read. If alpha is equal to limit n tends to infinite है. एक second. If alpha is equal to limit n tends to infinity 1 upon n cube plus 1 plus 4 upon n cube plus 1 plus dot 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 plus n square divided by n cube plus 1 ये अल्फा है. बीटा है limit x tends to infinity sin 2x divided by sin 8x. Then the quadratic equation whose roots are alpha and beta. So I think you guys got the question. Solve this alpha, solve this beta, pause this video for 2 minutes, maximum 2 minutes, and then give me the answer. Now we will move forward. Now this is a solution. Let us see. Alpha is equal to limit n tends to infinity 1 का square 4 means 2 का square 3 का square up to n square divided by n cube plus 1 common था. आप सबको पता है this will be n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6 denominator is n cube plus 1 n tends to infinite है cancel out करो. ऊपर आएगा 1 into 2 divided by 6 यहाँ नीचे आएगा 6 हट गया है तो फाइनली आंसर आएगा 2 by 6 that is 1 by 3. तो अल्फा is 1 by 3. Now come to the beta. Beta is x tends to infinity sin 2x अपॉन 2x सॉर्ट आउट किया ऊपर दिया sin 8x अपॉन 8x सॉर्ट आउट किया बीटा आया 1 by 4 तो अल्फा बीटा आ चुका है. Now you can write the quadratic equation that is x minus 1 by 3 into x minus 1 by 4 and you got it which is 12x square minus 7x plus 1 equal to 0. That is option 1A. Question 2. Pause the question and solve within a 2 minutes. Limit x tends to a bracket के अंदर fx plus gx is equal to 2 and limit x tends to a bracket के अंदर fx minus gx is equal to 1. Then find limit x tends to a fx into gx. पहले चेक कर लो exist करता है कि नहीं. If it exists then find a value. Now come to the solution. For this you guys can pause the video for your time limit. Now see. Let us assume that limit x tends to a fx is alpha and limit x tends to a gx is beta. तो ये इक्वेशन में जाएगी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 क्योंकि लिमिट अंदर जा सकता है हर एक के साथ सेपरेटली. तो अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा माइनस बीटा 1 alpha plus beta 2 alpha minus beta 1 and solve them you get alpha and beta. Now here we have to find alpha into beta. We get alpha into beta which is 3 by 4. Yes it is exist and 3 by 4. Does not exist का कोई सेंस ही नहीं दिख रहा मुझे यहाँ. Come to the third question. You guys can pause this video to get the solution. Come to the third. If fx is equal to sin x अगर x n pi नहीं है not equal to n pi यहाँ पे n क्या है 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 dot 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 else वो 2 है. gx can be defined as जब x की वैल्यू 0 और 2 नहीं है then x square plus 1 when x is equal to 0 then 4 when x is equal to 2 then 5. then composite function दिख रहा है limit x tends to 0 g of f of x. देखो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं composite function में. Pause this video and solve for 2 minutes. Now come. What we have to do, understand it very carefully. X tends to 0 पे जाना है. It means LHL, RHL निकाल के चेक करते ज़्यादा अच्छा है क्योंकि not exist का भी ऑप्शन दिया है. First of all, RHL that is right hand limit. X tends to 0 है that is 0 plus जाएगा RHL तो G of f of x. Limit अंदर जा सकती है. I have told you composite function defined है. अंदर चला जाएगा when x tends to 0 plus it means 0 plus h. Where h tends to 0 तो यहाँ पे h tends to 0 है G of 0 plus पे fx क्या आ रहा है. देखो 0 जब नहीं होगा ये n equal to 0 है मैं मान रहा हूँ n equal to 0 है मतलब यहाँ 0 मतलब x not equal to 0. तो मैं भी जो 0 plus बोल रहा हूँ वो not equal to यहाँ पे ही आएगा 0 plus. जब 0 नहीं होगा 0 से बड़ा और 0 से माइनस पे तो यहाँ पे क्या आएगा g of sin of h. ये वाला fx यहाँ पे डिफाइन होगा when sin of h. sin x डिफाइंड है जब x 0 नहीं होगा. तो आई एम ऑल्सो सेइंग ना कि x की वैल्यू 0 प्लस h है 0 नहीं है तो sin x आएगा. केयरफुल
h टेंडिंग टू 0 है तो g ऑफ, जब h टेंडिंग टू 0 है तो ये क्या आएगा, साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0 प्लस, क्योंकि ये बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, h टेंडिंग टू 0 है बट 0.0001 एग्जैक्ट 0 नहीं है, तो एग्जैक्ट 0 पे 4 आएगा, बट हमें वो नहीं चाहिए, इट इज 0 प्लस, h पॉजिटिव है, बड़ा है 0 से, 0.0000 समथिंग है, तो जब 0 नहीं है मतलब उसके आसपास है तो आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 1 g का, तो g के अंदर साइन h है, तो जब यहाँ जाएगा तो साइन स्क्वायर h प्लस 1, नाउ h इज अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू 0, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0 और यहाँ आएगा 1, ये ब्लैक क्या आ गया, मिस्टेक हो गई। नाउ दिस इज RHL, यहाँ सॉरी दिस इज LHL, यहाँ पे लिखना है LHL, छूट गया, LHL मतलब 0 माइनस, 0 से छोटा, मतलब 0 नहीं है तो g ऑफ f ऑफ x, 0 नहीं है आज भी यही होगा, x नॉट इक्वल टू 0 दैट इज साइन x, बट नेगेटिव में है क्योंकि यहाँ माइनस 0 माइनस h आया ना, तो यहाँ 0 माइनस h डालने से माइनस साइन h आएगा, h टेंडिंग टू 0, अगेन ये 0 नहीं है, तो नहीं है मतलब x स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर h प्लस 1, तो ये टेंडिंग टू 0 पे 0 ही आएगा, ये बच गया प्लस 1, तो LHL इज इक्वल RHL इज इक्वल टू LHL, 1 और 1 आया है, तो 1 और 1 मतलब ऑप्शन ये है। कंपोजिट फंक्शन का अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल मेंस में आ सकता है ऐसा, इजी है। चलिए नाउ पॉज दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व, मैं रीड कर देता हूँ, लिमिट लेट fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x अपॉन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 into sin 2x अपॉन x प्लस डॉट 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 10 into sin 10x upon x greatest, where this is the largest integer less than equal to greatest integer लिखा, then find the value of limit f of x where x tending to 0, pause it and solve it. Now come to the solution, देखो sin x upon x था, नो प्रॉब्लम थी, ऐसे भी नो, ग्रेटेस्ट के केस में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये टेंडिंग टू 1 तो होता है बट बेसिकली ग्रेटेस्ट के समय है लेस देन इक्वल टू 1, मतलब बहुत कीन ऑब्जर्वेशन की जाए तो साइन 2x अपॉन 2x होना चाहिए ना, तब तो बात बनेगी, तो नीचे 2 दिया ऊपर भी 2 दिया, तो 2 स्क्वायर, तो 3 3 4 4 10 10, तो मतलब फाइनली 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 10 स्क्वायर बन रहा है, दिस इज लेस देन 1 लेस देन 1 लेस देन 1 लेस देन 1, तो बहुत ध्यान से देखो, इफ इट इज लेस देन 1 तो मतलब इसका ग्रेटेस्ट का आंसर क्या आता है 0, और बेसिकली वो आया कैसे है, आपके पास जो भी वैल्यू अंदर है उससे आप एक कम कर दो, इन द ग्रेटेस्ट इंटीजर यू आर सब्ट्रैक्टिंग 1, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 1 था मतलब 1 स्क्वायर माइनस 1 किया, हियर इट इज 2 स्क्वायर ना, तो इट इज 4, तो यू गाइस वुड हैव राइटेड 3, तो मैंने इसको अलग से लिखा 2 स्क्वायर माइनस 1, तो 3 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1, तो 10 स्क्वायर माइनस 1, कैलकुलेशन ठीक करने के लिए किया बस, तो ये आई हैव रिटन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, तो 1 1 1 10 बार है माइनस 10, सॉर्ट आउट कर लो, 375 आंसर आ रहा है, 375 मतलब ऑप्शन नंबर डी, ये समझ में आता है ना, साइन एक्स इज लेस देन एक्स, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, लेक्चर्स में है, पॉज द वीडियो एंड राइट इट। Come to the another question, the natural number n for which limit x tends to 27 की पावर x minus 9 की पावर x minus 3 की पावर x plus 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के अंदर cos x minus e की पावर x डिवाइड बाय x की पावर 2n plus 1 is a finite नॉन जीरो नंबर, जो भी आंसर आएगा एक फाइनाइट आएगा और नॉन जीरो आएगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, चलें पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। हाँ, कम टू द सॉल्यूशन, 27 को 9 into 3 लिख दो, ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है, 9 की पावर x माइनस 1 अपॉन x, 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन x, अब नीचे दो एक x एक्स्ट्रा कैसे आ गए, ये था x की पावर 2n प्लस 1, तो 2 यहाँ दे दो, तो कितने बच गए, x की पावर 2n माइनस 1, देखो ना प्लस 1 था, 2 यहाँ दे दिए तो 2n माइनस 1 बचा। नाउ हियर कम्स द यूज ऑफ द सीरीज एक्सपेंशन, जो मैंने अभी तक नहीं सिखाया, मुझे नेक्स्ट लेक्चर में यही सिखाना है, बट आप लोगों ने थोड़ा बहुत पहले ही पढ़ रखा है, तो यू गाइस कैन कैच इट। cos x की सीरीज है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट, बीच में लगा माइनस माइनस e की पावर x की सीरीज है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट 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 डिवाइड बाय x की पावर 2n minus 1, here we get ln 9, here we get ln 3, because the question said it is a finite answer, तो ln 9 finite है, ln 3 finite है, यहाँ पे finite answer होना चाहिए, for to get the finite answer, ये 1 और ये माइनस 1 कट चुका है, here it is minus x, here it is minus x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, दोनों मिलके minus x स्क्वायर बच गया और पीछे चलता जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज है ना यहाँ पे, ये तो ब्रैकेट इज क्लोज्ड, बहुत चलता जाएगा, हमें कोई मतलब नहीं, divided by x की power 2n minus 1, for this answer to come finite, I again say for this answer to come finite only, क्या आ रहा है से मतलब नहीं, बट एक फाइनाइट नॉन जीरो है, इसका हाईएस्ट पावर शुड बी सेम, तब तो कोई फाइनाइट चीज बनेगी, तो x की पावर क्या लिखा है 1 है,
मिनिमम जो पावर है इस पूरी सीरीज में x की पावर 1 है, डिनोमिनेटर है 2n-1, तो both the power should be same. That is 2n-1 power should be equal to 1. This should be equal to 1. It means 2n is equal to 2. It means n is equal to 1. So we get the option A, n is equal to 1. बन गया होगा. हाँ, now solve it. Limit x tends to 0 plus log of sin 2x with the base of sin x. Pause and solve it. Now what to do? Log की property. Log sin 2x divided by log sin x, x tending to 0 plus है तो log 0 infinite, infinite, infinite upon infinite का केस है. Apply LH rule, differentiate कर लो. Differentiate करके sort out करो और immediate answer लिख लो. That is one. Easy question है. ठीक है, चलें आगे. चेन रूल लगा ना, differentiation time. यहाँ लगा. One more question. fx is equal to has been defined. Composite दिख रहा है. 1 minus x comma x जब less than 1 हो, x minus 1 comma जब x greater than equal to 1. gx defined है 3 minus x जब x less than 0 हो, 1 minus x square जब x greater than equal to 0 हो. Then compute limit x tends to 1 g of f of x. Similar question we have done. Now it's your chance to do. हाँ, LHL, RHL, चलो सबसे पहले RHL निकाल लेते हैं. राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस g ऑफ f ऑफ x. 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा यहाँ बहुत क्लैरिटी है. fx में 1 से बड़ा ये रहा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x माइनस 1, तो ये इट इज 1 प्लस h. तो g के अंदर h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस h, x की जगह 1 प्लस h माइनस 1, 1 और 1 कट गया h. लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ h. अब देखो g ऑफ h के पास चलते हैं. h टेंडिंग टू 0 यहाँ पॉजिटिव है फिलहाल, h 0.0001 कुछ पॉजिटिव है, तो कुछ पॉजिटिव यहाँ मिलेगा. g के अंदर जा रहे हैं ना, g ऑफ h पॉजिटिव, x ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव यहाँ है 1 माइनस एच स्क्वायर, तो 1 माइनस एच स्क्वायर वेयर h इज टेंडिंग टू 0, तो आंसर 1. LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, दैट इज 1 माइनस h, 1 से छोटा, g ऑफ f ऑफ x. तो सबसे पहले अंदर जाएंगे fx के पास, fx के पास चलो 1 से छोटा, 1 से छोटा आएगा 1 माइनस x, तो 1 माइनस x, x क्या है 1 माइनस h है ना, यहाँ पे आज की डेट में नया x है 1 माइनस h. सॉर्ट आउट किया तो सिर्फ बच गया g ऑफ h, बट हियर h इज अगेन h इज टेंडिंग टू 0 है ना, h तो पॉजिटिव है ना 0.00 समथिंग समथिंग, तो यहाँ तो पॉजिटिव ही है ना g पे, तो g पे पॉजिटिव है, दैट इज 1 माइनस h स्क्वायर, 1 माइनस h स्क्वायर, h इज टेंडिंग टू 0 और ये भी आ गया 1. LHL is equal to RHL. Finally we got 1. Cool. If you have any doubt you can contact me anytime. The next question, be careful. यहाँ पे लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x अपॉन x. ये हमें प्रूफ करना है दिस इज नॉट इक्वल टू, यहाँ लगा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कुछ नहीं है ना, इग्नोर इट, ये कुछ नहीं है. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x और ये क्लोज कर दिया. क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं कि नॉट इक्वल है, ये ट्रू और फॉल्स पता करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व कर लेते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x. अब हमें पता है ये sin x अपॉन x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, जैसे उसका ग्रेटेस्ट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 0, तो लिमिट व्हाटएवर इट इज 0 का आंसर 0 आएगा. कूल. बट ये डिफरेंट है, यहाँ पे अंदर लिखा है, अंदर सबसे पहले यू हैव टू सॉल्व लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x. अंदर जब पूरे के पूरे को सॉल्व करोगे, लिमिट लगा दोगे, उसका आंसर ही 1 आ जाएगा. यू विल गेट द आंसर 1 बिकॉज़ sin x अपॉन x की लिमिट x टेंड्स टू 0 1 आती है. अब उसका ग्रेटेस्ट लोगे तो 1 का ग्रेटेस्ट तो 1 ही आएगा. Here it is different, here it is sin x upon x का greatest, but sin x upon x का greatest is always less than 1. उसका sin x upon x की जो वैल्यू है that is less than equal to 1, उसका greatest integer दिया तो 0 आ जाएगा. But here limit x tends to 0 sin x upon x है जिसका आंसर 1 है, उसका greatest लेना है तो आंसर 1 आएगा. ठीक है, तो here they both are not equal to each other, that is very good. Now series expansion में हल्का सा बताते जा रहा हूँ. sin x की सीरीज होती है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट. स्टार्टिंग के 2-3 टर्म्स याद करने होते हैं बस. 10x इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15 डॉट डॉट डॉट. जस्ट रिमेंबर फ्यू थिंग्स वी हैव ऑलरेडी बीन लर्न कि sin x इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 10x व्हेन x इज इन 0 टू पाई बाय 2. इनवर्स के केस में उल्टा हो जाता है, sin इनवर्स x इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू tan इनवर्स x. इनवर्स के केस में उल्टा होने वाला था, वेयर x बिलोंग्स टू 0 से 1. यू गॉट दिस ना, इस बॉक्स को याद कर लो अच्छे से. कम ऑन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व इट. लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर tan इनवर्स x अपॉन x. ठीक है, चलिए नाउ सी इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले tan x upon x, as we already know कि sin x is less than x is less than equal to 10x, and sin inverse x is greater than x is greater than equal to 10x.
सिर्फ इसको सॉल्व करना है 10x अपॉन x, तो 10x अपॉन x जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, दैट इज 1.0000001, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा। हियर tan इनवर्स x अपॉन x, नाउ वेरी केयरफुल, tan इनवर्स x डिवाइड बाय x करोगे अगर तो ये 1 आएगा, तो 1 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स x अपॉन x, मतलब tan इनवर्स x अपॉन x 1 से छोटा है, मतलब 0.999999 है, उसका ग्रेटेस्ट लोगे तो 0 ही आएगा, तो हियर 1 + 0 इज 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लिमिट बाहर लगी है, पहले ग्रेटेस्ट को सॉल्व करना है दोनों के केस में। वन मोर क्वेश्चन, ध्यान से, अब देखो अंदर है tan x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0, पहले अंदर लगा गई है लिमिट, पूरी की पूरी सॉर्ट आउट करो तो इसका आंसर तो 1 आता है, 1 लिख दिया, उससे ग्रेटेस्ट 1 आएगा। tan इनवर्स x अपॉन x x टेंडिंग टू 0, पूरा का पूरा अंदर सेटअप है, अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा, पूरा का पूरा अंदर सेटअप लोग के 1 आ चुका है, उसका ग्रेटेस्ट लोगे तो 1 आएगा, 1 + 1 2। सी वेरी केयरफुली, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन वेयर कंप्लीटली यू गॉट द आंसर 1, उसका ग्रेटेस्ट लिया 1, इसका कंप्लीट आंसर आ चुका है 1, उसका ग्रेटेस्ट लिया तो 1, तो 1 + 1 2। In above question, it was a different. Here, only greatest integer was there. That is tan inverse x upon x, which is 0.9999. यहाँ लिमिट नहीं लगी थी, लिमिट लगी होती तो 1 लेता, बट सिर्फ इसका आंसर चाहिए, that is 0.999, उसका ग्रेटेस्ट 0। सिर्फ इसका आंसर चाहिए which is greater than equal to 1, that is 1.00001, उसका ग्रेटेस्ट चाहिए, that is 1। This question is far different from this question because यहाँ लिमिट लग चुकी है अंदर, इसका आंसर एग्जैक्ट 1 आ चुका है, इसका आंसर भी 1 आ चुका है, उनका ग्रेटेस्ट 1 ही आएगा, that is 1 + 1 2। I think you guys are getting my point. One more question, same. Limit x tends to 0 sin x upon tan x plus minus, बिल्कुल सेपरेट रखो, sin x upon x plus माइनस अलग से रखो, tan x upon x, सब पे ग्रेटेस्ट लगाना, सारे ग्रेटेस्ट है। Pause and solve. Now, as we know, sin x is less than x, x is less than equal to tan x. अब देखो sin x upon tan x, तो tan x अगर नीचे आ गया तो sin x upon tan x ऑब्वियसली बात से less than 1 आएगा। सिर्फ इसी को सॉल्व करना है, लिमिट का कोई रोल ही नहीं है फिलहाल, तो less than 1 आएगा, मतलब 0.999, उसका ग्रेटेस्ट आ गया 0। इस माइनस को साइड में रखो पहले शांति से, sin x upon x, तो sin x upon x which is less than 1, माइनस पड़ा रहेगा less than 1, that is 0.999। अब माइनस 0.99 का ग्रेटेस्ट क्या आता है, -1, प्लस माइनस को पड़े रहने दो एज इट इज, tan x upon x is greater than 1, that is 1.0001, उसका माइनस, that is -0.001, that is -2, उसका ग्रेटेस्ट दिया -2। now here -1 and -2 becomes to be -3, getting now? One more question, limit x tends to 0 5 into sin x upon x plus minus of 5 tan x upon x, pause and solve। अगेन sin x अपॉन x सबको पता है छोटा होता है 0.99999, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.99999, अप्रोक्सीमेटली ग्रेटेस्ट लिया तो 4 आया। tan x अपॉन x बड़ा होता है, दैट इज 1.0001, माइनस तो अलग से रखो, 5 से मल्टीप्लाई की तो 5.001, लेकिन माइनस में है तो उसका ग्रेटेस्ट लेने से -6 आएगा, 4 - 6 will be -2। I think you guys are getting my point and you guys are scoring well. One more question, limit x tends to 0 sin inverse x upon x plus minus tan inverse x upon sin inverse x plus minus 3 times of tan inverse x upon x का सबका ग्रेटेस्ट है ना, लिमिट अलग से लगा बाहर। oh come now sin inverse x upon x, be very careful, sin inverse x is greater than x, x is greater than tan inverse x। sin और इनवर्स में जो चीजें हैं वो थोड़ी रिवर्स हो जाती है, जैसे यहाँ रिवर्स है, sin inverse x is greater than x, x is greater than tan inverse x। sin inverse x upon x अगर डिवाइड बाय x करूंगा तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट इज 1.001, माइनस को अलग करो, tan inverse x upon sin inverse x, तो sin inverse x अगर नीचे आ गया तो दैट विल बी लेस देन 1, ये 1 आएगा, यहाँ नीचे आएगा तो लेस देन 1, दैट इज 0.999, माइनस पहले से है, माइनस एज इट इज रहने दो, tan inverse x upon x, अगर x नीचे आ गया तो दैट tan inverse x upon x इज लेस देन 1, दैट इज दिस विल बी 3 से मल्टीप्लाई होगा 2.999, माइनस पहले से, इसका ग्रेटेस्ट लोगे तो -3 आएगा, इसका ग्रेटेस्ट लोगे तो -1 आएगा, इफ यू टेक द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस तो यू विल गेट 1, तो फाइनली वी विल गेट -3। गेटिंग ना? गुड क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log x ln x minus greatest integer of x divided by greatest integer of x। so now there are two different approaches. First of all,
ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिवाइड कर दो तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, दिस इज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ln x डिवाइड बाय ग्रेटेस्ट माइनस ग्रेटेस्ट अपॉन ग्रेटेस्ट कट के बना लिया। नाउ बी वेरी केयरफुल, टू ऑब्जर्वेशंस आर देयर। मैं एक बात बताऊं, when x tends to infinite ln infinite is infinite, that is cool. What about this greatest integer? सपोज करो आपने एक बहुत बड़ी वैल्यू ले ली, एग्जांपल के लिए 10 करोड़, दैट इज 10 करोड़ पॉइंट व्हाटएवर लिख लो, 10 करोड़ पॉइंट 0000500 व्हाटएवर कुछ भी, तो उसका ग्रेटेस्ट तो 10 करोड़ ही आएगा। मतलब आप इनफाइनाइट के केस में when x is tending to infinite and if you are taking greatest integer तो वो greatest integer कन्वर्ट हो जाता है x। जैसे अभी 10 करोड़ पॉइंट समथिंग के केस में 10 करोड़ ही आया, बहुत 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 बड़ी वैल्यू के केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही बन जाता है। तो यू कैन राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एज x। टेक वन मोर एग्जांपल, सपोज यू विल टेक 5 करोड़ 50 lakhs और 50,000 व्हाटएवर, एक पूरी सीरीज बना लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 करोड़ ही आएगा। तो अगेन तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का आंसर अप्रोक्सीमेटली हम x ही लेंगे इनफाइनाइट के केस। अगेन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का केस है, इट मींस LH रूल लगने वाला है, LH लिखा है, LH रूल, तो ln x का 1 अपॉन x, x का है 1, तो ये -1 एज इट इज रहेगा क्योंकि मैं LH रूल यहाँ लगा रहा हूँ। तो हियर वी विल गेट 1 अपॉन x minus 1 where x tending to infinite, that is 1 upon infinite minus 1, 1 upon infinite 0 0 minus 1 minus 1। Are you getting this? बहुत easy question है। Just understand when x is tending to infinite, to greatest integer of x convert into x। Second approach, graphical approach। See, ln x का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे जाता है, 1 से पास होते हुए एक तरफ ऐसे कर्व मुड़ जाएगा। अगर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x बनाता तो एक स्ट्रेट लाइन जाती, और कोई भी कर्व बनाता, कोई भी पॉलिनोमियल x स्क्वायर x क्यूब x की पावर 4, तो वो पॉलिनोमियल ऐसे कर्व बनते हुए ऊपर से चला जाता है। दिस इज स्ट्रेट लाइन। अगर y इज इक्वल टू x है, अगर y इज इक्वल टू x की पावर n है, यहाँ पे n पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव पॉलिनोमियल के केस में पॉजिटिव तब ले रहा हूँ, तो ग्राफ ऐसे ऊपर जाता। बट वन मोर डायग्राम, जब e की पावर x आता तो e की पावर x एक्सपोनेंशियल ग्राफ बहुत स्पीड में ऊपर जाता है ना, बहुत स्पीड में ऊपर जा रहा है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो इन तीनों ग्राफ में आप ऑब्जर्वेशन देख सकते हो। इफ वी टेक x इज इक्वल टू इनफाइनाइट हियर ओनली, तो इनफाइनाइट के केस में ln यहाँ है, पावर n यहाँ होगा x की, और e की पावर x बहुत ऊपर होगा। इट मींस when x is tending to infinite, e की पावर x is very 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 bigger than x की पावर n, and x की पावर n is very 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 bigger than ln x। तो ये समझ लो बहुत अच्छे से ग्राफिकली, whenever x tending to infinite, so this is very very big than x की पावर n, and this is very very big than ln x। तो दिस हेल्प्स अस। क्यों? देखो इतना तो समझना होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज कन्वर्टेड टू x। नाउ ln x अपॉन x बोला है ना, तो ln x तो बहुत 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 छोटा होता है। ln x देखो ना बहुत बहुत छोटा है, x की पावर 1 लगा दो n, स्ट्रेट लाइन में जाएगी, बट ln x बहुत 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 छोटा है। तो ये बहुत छोटी वैल्यू डिवाइड बाय इनफाइनाइट, एनीथिंग बहुत छोटी वैल्यू डिवाइड बाय इनफाइनाइट विल बी 0, तो 0 -1 आ गया सीधे। तो ग्राफिकल अप्रोच से भी समझ सकते हो और इससे भी समझ सकते हो। Come to the next question. Solve. बताओ कि ln x लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ln x डिवाइड बाय a की पावर x कितना आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो। अगेन दोनों मेथड सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले ग्राफिकली, e की पावर से ग्राफ ऐसे जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, ln से ग्राफ डाउन होता जाता है। whenever x tends to infinite, e की पावर x बहुत ज्यादा बड़ा है। whenever x tends to infinite, e की पावर x is greater, very 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 greater than ln x। तो बस e की पावर x डिनोमिनेटर में लिखा है, वो न्यूमरेटर में छोटी सी वैल्यू है। हाँ देखो, मैं मान रहा हूँ कि दोनों इनफाइनाइट है, दोनों इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है, बट ये जो इन्फिनिटी के में इन्फिनिटी आई है वो e की पावर x की इन्फिनिटी से बहुत छोटी है। वी कांट कंपेयर इन्फिनिटी, बट यहाँ पे हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि दोनों बहुत इनफाइनाइट वैल्यूज है, बट यहाँ क्लियर है कि e की पावर इनफाइनाइट बहुत बड़ी वैल्यू है, एंड ln की पावर ln इन्फिनिटी की वैल्यू है तो इन्फिनिटी, बट एटलीस्ट उससे तो बहुत छोटी है। तो ये e की पावर x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ln x। ln x डिवाइड बाय e की पावर x, ln x की कुछ वैल्यू है डिवाइड बाय e की पावर की बहुत बड़ी वैल्यू है, तो दैट विल बी 10 to 0। अब जिसको ग्राफिकली नहीं समझ में आ रहा है, ऑब्जर्व कर लो, डिफरेंशिएट इट। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के कैसे LH रूल लगाओ, ln x का 1 अपॉन x, e की पावर x का e की पावर x, ये नीचे आ जाएगा 1 अपॉन x e की पावर x, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफिनिटी इनटू इनफिनिटी इनफिनिटी आएगा, तो 1 अपॉन इनफिनिटी इज 0। आई थिंक ग्राफिकल अप्रोच इज गुड। वन मोर क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी, x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 डिवाइड बाय 2 की पावर x। दूसरा क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी, ln x डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसको सॉल्व करो और बताओ। ठीक है, मैं बताता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, आगे वाली स्लाइड में चल पड़ते हैं। ये
पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, एंड आई हैव टोल्ड यू नीचे 2 की पावर x है, 2 की पावर x मतलब अ टर्म ऑफ द एक्सपोनेंट्स, तो 2 की पावर x बहुत बहुत बड़ा होगा व्हेन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, वो भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, बट दिस 2 की पावर x इन्फिनिटी इज वेरी बिगर देन दिस, there is something value divided by infinity will tend to 0. Here again case ln x divided by a polynomial, तो ln x काफी छोटा होता है, polynomial की वैल्यू बहुत बड़ी आने वाली है, इन्फिनिटी दोनों है, बट कंपैरेटिवली ये छोटी वैल्यू आएगी, ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो बहुत बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में, दैट विल बी 10 to 0. ऑब्जर्व इट, मैं आपको फिर से ग्राफ में दिखा रहा हूँ. Here ln x when x tending to infinite is getting very less values. x की पावर n is the polynomial which is getting very high, and e की पावर x बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है. So here always when x tending to infinity, exponential graph is exponent value is very 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 greater than polynomial expressions, which is polynomial is very very greater than ln x. So I think you guys got the point. Till then, try to write everything in your notes, and all of you please WhatsApp me your marks, चाहे जितने भी आए हो. I want to know कि how sincere you guys are doing and what are you doing. मुझे पता भी चले कि कितने लोग वीडियोस देख रहे हैं, कितने लोग सिंसियरली कॉपी में लिख रहे हैं, और जितने मुझे मार्क्स दिखेंगे, जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आएंगे, मैं समझ जाऊंगा कि कितने सिंसियरली they really want to crack IIT, they really want to do, they really are doing something. ठीक है, so thank you guys.